बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल का टॉपिक है वेरिएशंस। वेरिएशन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें अभी आज के जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है इनवर्स का अलग से उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम उसकी बात करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, नंबर वन कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो अगर दो वैल्यूज, ऐसा है कि दो वैल्यूज हैं, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इफ x एंड y are two variable quantities related to each other, such that y increases as x increases, यानी जैसे जैसे y बढ़ेगा वो साथ साथ x भी इंक्रीज होगा। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। ओके, नाउ if the values are like x and y, if we relate them this way, the value of x is 2, then value of y is 5. If this value is doubled, this will also be doubled. If this value is 3 times 3 to the 6, then this value will be 3 5s are 15. If this is 8, 2 4s are 8, 5 4s are 20. Then 10, 12, 14, then this will be 25, 30, 35 and many more. One thing you can notice that x over y is constant in every step. 4 over 10 is 2 over 5, 2 over 5, 2 over 5. At every stage they have same ratio, that is 2 over 5, which is constant. So you can say that x over y remains constant if there is direct proportion between x and y. If there is direct proportion between x and y, then x over y remains constant as like this value. Also, y over x, like x over y is 2 over 5, then y over x is 5 over 2. So at every step y over x will again be constant. So you can say that y over x is also a constant. अगर इसको आप इसको k1 रख लें तो ये k2 के दोनों की वैल्यू में ये डिफरेंस होगा कि ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, कि k2 इज इक्वल टू 1 ओवर k1, उल्टा हो जाएगा। अगर वो 2 ओवर 5 है तो ये 5 ओवर 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में इनके प्रोपोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी इसको अगर आप k2 की वैल्यू लें या k1 की वैल्यू लें
तो ये अगर इसके बाद ये 16 आएगा तो वो 40 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि x1 over y1 is equal to x2 over y2। तो अगर x1 और y1 की वैल्यू का जो रेशो है वही रेशो x2 और y2 का है। ये देखें, जैसे ये 2/5 है तो ये 4/10 दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूं लिखूं कि 2/5 इज इक्वल टू 4/10। अब देखें, दोनों को उल्टा कर दें आप, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ ऑफ दीज, so again they will be equal. So same thing I can write here, that the other form of this expression y1 over x1 is equal to y2 over x2. One more thing I can do, that if I shift x2 this way, if I shift x2 here and y1 here, what will be then? x1 over x2, that will be equal to y1 over y2. So still they are equal. यहाँ से देखें, x1 over x2 2/4, that will be equal to 5/10। तो इसको आप अगर चेंज करते भी हैं कि इसको इस तरह से लिखें कि 2/4 इक्वल टू 5/10, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके तो रेशो फिर भी इक्वल होगी। यानी अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं 1 और ये 2, तो ये 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो दोनों की रेशो सेम रहेगी। यानी x1 over x2 that will be equal to y1 over y2। इसी तरह से यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि if you multiply them this way cross, then x1 y2 that will be equal to x2 y1। Like from here, if we take this value and we write it here, and if you cross multiply them this way, then 2 multiplied by 10, that is equal to 4 multiplied by 5, 20 is equal to 20। So and these different forms of the same ratio, basic ratio is the same, x1 over y1, x2 over y2. If you invert both sides, it doesn't make a difference. If you shift these values, if you swap these values with each other, again it is same, and if you cross multiply them, it makes no difference. So this is the basic concept of direct proportion, that y increases as x increases. Y increases as x increases. So next, second thing what we need to discuss is that algebraic and graphical representation. Graphical representation of direct proportion. Okay, now how we can represent algebraically that if x1 over y1 is equal to x2 over y2 and so on, then you can say that
y is proportional to x. If ratios stay same, then we represent them with this expression that they are there is direct proportion between them. And we have seen right now that their value is always constant. So we can say that y is equal to kx. अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि if x is equal to let's say 3 और y is equal to 8, या कोई ऐसा नंबर ले ले थोड़ा सिंपल हो जाए कि इसको 4 कर लेते हैं. x is 4, y is 8. Find एक्सप्रेशन. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्रेशन बिटवीन x एंड y. तो x एंड y तो ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब है कि k को हमने यहां से रिप्लेस करना है. तो y is 8 when x is 4, then k is equal to x is 4, k is equal to 2. जहां से 4 के साथ डिवाइड करेंगे k की वैल्यू 2 आएगी. Therefore y is equal to 2x. तो ये देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि फाइंड y when x is equal to 3, तो y is equal to 2 times 3, so that will be 6. या ये भी हो सकता है फाइंड x when y is equal to 10, तो 10 is equal to 2x, then x is equal to 5. तो इस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं. और जैसे यहाँ पे y is equal to 2x है ना, y is equal to 2x, हम ये भी तो कह सकते हैं x is equal to half y. x को सब्जेक्ट बना लें तो k की वैल्यू फिर 1/2 हो जाएगी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर यही वैल्यूज जो हमने यहाँ पे फाइंड की हैं दोबारा इस एक्सप्रेशन से फाइंड करें तो भी वही रहेगा. तो इसलिए x is equal to ky या y is equal to kx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसके जो कैलकुलेशन है वो वैसे ही रहती है. इसको अगर आपने k की वैल्यू 2 होगी तो x के साथ लगाएंगे, अगर k की वैल्यू हाफ होगी तो y के साथ आ जाएगी. ये फर्क पड़ेगा और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो उसके लिए ना हम यही टेबल, यही वैल्यूज ले लेते हैं बजाय इसके कि दोबारा कोई वो करें. तो इसको हम यहां से सेम वैल्यूज इधर शिफ्ट कर लें. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं इन वैल्यूज का, तो ये जो है इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, like this is the line, vertical line, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ऐड कर देते हैं. ये तो अब यहाँ ये वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हमारी 14 तक है और वर्टिकल 35 तक. तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये 2, 4, 6, 8,
10, 12 और 14। और वर्टिकल लाइन पे इसको हम यहां से ऐसे कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 and this is 30 and 35। तो अब यहां से देखें, ये जो है यहां से ये जो वैल्यूज हैं हमारी 2, 5, 4 पे 10, 6 पे 15, ये 2 के अगेंस्ट, ये 5, 4 के अगेंस्ट 10, ये मैं क्विकली इसको जो है ना 6 पे 15 और फिर ये और ये सारी वैल्यूज हैं। तो इनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये फिर इधर से लाइन इसकी इस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करें पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ये देखें, तो ये हमारी लाइन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से ये जो है, अब इससे हम क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये क्या चीज है। यहां से इससे हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं इससे कि क्या बना। तो इसमें दो चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है कि द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन graph of direct proportion between two quantities number one is a straight line. It will always be a straight line. And second thing, that it always between two quantities always passes through origin. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ग्राफ की ये प्रॉपर्टी है कि इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। जी, ये दो चीजें हमने यहाँ पे इसके डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि algebraic representation, that is y is equal to kx, and secondly that the graph between the quantities is always a straight line. Okay, now this is x and this is y. So the proportion is between x and y, then graph is between x and y, so it is a straight line. अगर x और y में प्रोपोर्शन है तो x और y का ही ग्राफ होगा। तो अब अगर और कोई फॉर्म्स हैं इसकी, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है कि other forms of direct proportion, तो और क्या फॉर्म्स हो सकती है इसकी। तो उसमें पहले हम y is proportional to x square करके देखते हैं, फिर बाकियों की बात करते हैं। तो then it will be y is equal to kx square। अब
अगर ये एक्स वाई और एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका मैं एक रफ अगर ग्राफ स्केच करूं तो आई होप यू नो दैट द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला. This is a curve, quadratic curve. So this is not a straight line. If this is the graph between x and y, this is not a straight line. यहाँ पे हमने कहा कि ये हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास करेगा. तो ये जो है ओरिजिन से तो गुजर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो स्ट्रेट लाइन इस वजह से नहीं है कि जो हमने हमारी जो स्टेटमेंट थी वो इस तरह से है कि इफ दिस इज द ग्राफ बिटवीन x एंड y देन द क्वांटिटीज आर x एंड y देन ग्राफ इज बिटवीन x एंड y. ये देखें यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज थी ना वो x और y थी तो ग्राफ भी उसका वही बना. इसलिए इसको अगर आप एक टेबल इसका बनाते हैं, ये समझो इसको मैं ना कोई साथ वैल्यूज लिख देता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर. तो फिर इधर x की वैल्यूज ले लेते हैं और उसके साथ x की चंद एक वैल्यूज ले लें. 1 2 3 4 5 6. then x square will be 4 9 16 25 36 and many more. तो ये तो x स्क्वायर हो गया. तो y क्या हो गया? y is equal to 2x square. that will be 2 8 18 32 50 and 72. तो देखिए अगर ये प्रोपोर्शन x y और x स्क्वायर का है तो हमें ग्राफ जो है ना यहाँ पे इस तरह से ऐसे इधर x स्क्वायर लेना पड़ेगा. अगर इधर हम x स्क्वायर रखेंगे इस जगह पे ये x स्क्वायर होना चाहिए और इस जगह पे ये y होना चाहिए. तब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये आप इन वैल्यूज का यानी ये जो एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं, ये देखें इनका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. वो मैं अभी सारी पॉइंट्स ले के तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये समझ लें कि अगर इन दोनों का आप ये खुद चेक कर सकते हैं बना के कि दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब अगर कोई ऐसे है y is equal to 3x plus 2, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो that is a straight line passing through 2. क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? It fulfills half of the condition that the condition was there are two conditions. It should be a straight line and passing through the origin. It is a straight line, but it is not passing through origin. ये origin से नहीं गुजर रही तो इसलिए this is not direct proportion. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये origin से तो गुजर है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसलिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है. तो इस तरह दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होगा. Now there are some other forms like y is equal to under root x k times under root x या y square is proportional to x cube. इस तरह की चीजें हो सकती. तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा if you take under root x here and y over here, and in this case if you take the values of x cube and y square this way then it will be a straight line. ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन अगर आप x और y का ग्राफ बनाएंगे तो दैट विल बी अ कर्व. वो फिर इसी का अगर आप x और y का ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो वो इस तरह बनेगा. तो ये है x और y अगर आप लेंगे
तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये प्रोपोर्शन y और x में है, इधर ये y और अंडर रूट x में है। तो इस तरह कोई सी भी फॉर्म्स हो, आप जो सेम वैल्यूज हैं उन्हीं को यहाँ y और x पे कंसिडर करेंगे तो ये ग्राफ इजीली आप बना सकते हैं। तो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें जो है अभी हमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों के कंबाइंड कुछ पास पेपर के टॉपिकल पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। तो बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज।